اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مہاتما بدھ 483 قبل مسیح میں اتر پردیش کے شہر کوشی نگر میں انتقال فرما گئے۔ ہندوستان اس وقت 8 ریاستوں میں تقسیم تھا۔ بدھ علماء نے مہاتما بدھ کی راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ 8 ریاستوں کے اسٹوپوں میں دفن کر دی۔ مہاتما بدھ کی راکھ سے ان کے 7 دانت ملے تھے۔ یہ 7 دانت بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں۔ ان میں سے 4 ٹیکسلا لائے گئے تھے۔ یہ ٹیکسلا کیوں لائے گئے؟ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ ٹیکسلا بدھ گیا اور کوشی نگر کے بعد بدھوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ بدھوں نے مہاتما کی زندگی میں یہاں بدھ مت کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی۔ یونیورسٹی کا سینٹر جولیا میں تھا، جبکہ اس کی فیکلٹیز سوات، پشاور، تخت بھائی اور افغانستان کے شہر بامیان تک پھیلی تھیں۔ یہ علاقہ گندھارا کہلاتا تھا اور ہنڈاس اس کا دارالحکومت تھا۔ ہنڈ آج بھی آپ کو موٹر وے پر پشاور جاتے ہوئے دریائے سندھ سے ذرا پہلے نظر آتا ہے۔ تاہم یہ شہر وقت کے ہاتھوں برباد ہو کر چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے۔ سوات بھی اس زمانے میں گندھارا کا حصہ ہوتا تھا۔ بدھ ازم کے 3 فرقے بہت عام ہیں: مہایانا، ہنیانا اور تنتریانا۔ بدھوں کے تیسرے فرقے تنتریانا نے سوات میں جنم لیا تھا۔ اس کے بانی پدما سمبھاوا کا تعلق سوات سے تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بدھ مت چین، تبت اور کوریا میں ٹیکسلا سے پہنچا تھا۔ ٹیکسلا کے بھکشو تبت، چین اور کوریا پہنچے اور یہ ان کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی ممالک نے بدھ مت قبول کیا۔ ناظرین گرامی، بھوٹان میں آج بھی صبح کی عبادات سوات کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ بھوٹان، کوریا، تبت اور سری لنکا جائیں، آپ وہاں سوات کا نام لیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگیں گے۔ چانکیہ کا تعلق بھی ٹیکسلا سے تھا۔ چندر گپت موریہ نے بھی 322 قبل مسیح میں چانکیہ کے ساتھ مل کر ٹیکسلا میں موریہ سلطنت کی پلاننگ کی تھی۔ اشوک اعظم اسی موریہ سلطنت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے 260 قبل مسیح میں بنگال سے لے کر کابل تک پورے برِ صغیر پر حکومت کی۔ ٹیکسلا 2500 سال سے بدھ مت کا مقدس ترین شہر چلا آ رہا ہے۔ یہ اس دوران اجڑتا اور آباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ مٹی کا ڈھیر بن کر زمین کا رزق بن گیا۔ جان مارشل نے 1913 میں ٹیکسلا کے آثار کھودنا شروع کیے اور کمال کر دیا۔ وہ بدھوں کے مقدس ترین اثاثوں یعنی مہاتما کے 4 دانتوں تک بھی پہنچ گیا۔ جان مارشل نے ایک دانت وائسرائے کو پیش کر دیا اور وائسرائے نے یہ اڑیسہ میں رکھوا دیا۔ اڑیسہ آج بھی اس دانت کی وجہ سے بدھوں کے مقدس ترین مقامات میں شامل ہے۔ دوسرا دانت چٹاکانگ پہنچ گیا، جبکہ باقی 2 ٹیکسلا میں ہی رکھ دیے گئے۔ ناظرین گرامی، مہاتما بدھ کے باقی 3 دانت سفر کرتے کرتے سری لنکا، چین اور تائیوان پہنچ گئے اور یہ بدھوں کی مقدس زیارت گاہ بن گئے۔ سری لنکا کا دانت کینڈی میں ہے۔ یہ سونے کی دیوار کے پیچھے سونے کے صندوق میں رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی براہ راست زیارت نہیں کر سکتا۔ ایوب خان نے چٹاگانگ کے دانت کو جاپان گفٹ کر دیا تھا۔ جاپان کی پوری کابینہ اور بادشاہ نے ایئرپورٹ پر آ کر اس دانت کا استقبال کیا تھا اور پورے ملک نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس دانت کی زیارت کی تھی۔ وہ دانت کاماکورا شہر میں خصوصی ٹیمپل بنا کر رکھ دیا گیا۔ جاپان اس تحفے کی وجہ سے آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے۔ یوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس مہاتما بدھ کے 2 دانت ہیں اور یہ 2 مقدس ترین دانت آج بھی ٹیکسلا کے میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ دونوں کتنے مقدس ہیں، آپ اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگا لیجئے۔ پاکستان یہ دانت 2016 اور 2018 میں 2 مرتبہ سری لنکا لے کر گیا۔ لاکھوں لوگوں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے آ کر یہ وصول کیے اور لاکھوں لوگوں نے قطار میں کھڑے ہو کر ان کی زیارت کی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹیکسلا بدھوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ ٹیکسلا میں حویلیاں جائیں،
आपको वहां महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्समा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा है कि जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा की दुआ करे वो सेहतयाब हो जाता है। ये मुजस्समा पूरी दुनिया में एक है और 2500 साल से जूलिया में पड़ा है। जूलिया में दीवारों में बड़े बड़े ताक भी हैं। ये मॉन्स्टिक सेल कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए उतने ही मुकद्दस हैं जितना हमारे लिए रियाजुल जन्ना। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्मे और महात्मा बुद्ध की राख भी है। ये तमाम अशिया इतनी कीमती हैं कि ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकती हैं, लेकिन हम इन खजानों के बावजूद कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बुरी तरह नाकाम हैं। हमें चीजों को बेचना नहीं आता। हम अगर महात्मा बुद्ध के ये दोनों दांत फरोख्त कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाहिर है अकल चाहिए और वो हम में नहीं है। हुकूमत मुल्क में सियाहत को इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ये बहुत अच्छा फैसला है। सियाहत इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है। दुनिया इससे अरबों डॉलर सालाना कमाती है। फ्रांस सिर्फ लोहे के ढांचे यानी आईफल टावर से सालाना 22 अरब डॉलर कमा लेता है और ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामदात के बराबर है, जबकि हम दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है। हमारे पास 9000 साल की हिस्ट्री भी है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं, समंदर भी, सहरा भी, मैदान भी, बर्फिस्तान भी, ग्लेशियर्स भी और जंगल भी। लिहाजा हमें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताहम देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन मैं क्योंकि दायमी सयाह हूं, चुनांचे मेरा ख्याल है कि हम रिवायती सियाहत में पट जाएंगे। हमारे मुल्क में अच्छे बीच एरियाज हैं, साफ सुथरे शहर और ना ही पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के होटल और वॉशरूम्स तक नहीं बना सके। सिक्योरिटी के हालात भी अच्छे नहीं हैं और दूसरा, सियाहों को शाम के वक्त एक्टिविटीज भी दरकार होती हैं और हम मुसलमान मुल्क होने की वजह से उन्हें ये एक्टिविटीज फराहम नहीं कर सकते। हमारे खिते में भारत, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान जैसे लिबरल मुल्क मौजूद हैं। ये मुल्क सस्ते भी हैं और टूरिज्म फ्रेंडली भी। हम रिवायती सियाहत में इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है तारीखी और मजहबी सियाहत। हम अगर इस पर तवज्जो दें तो हम बड़ी आसानी से दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। हम अगर इस्लामाबाद में महात्मा बुद्ध के दांतों का टेम्पल बनाएं और बुद्ध दुनिया को दावत दें तो लाखों सयाह पाकिस्तान आ सकते हैं। हम इसी तरह जापान, चीन, थाईलैंड, ताइवान और कोरिया जैसे बुद्ध मुल्कों में महात्मा बुद्ध के दांतों की नुमाइश भी कर सकते हैं और हम इससे भी करोड़ों डॉलर सालाना कमा सकते हैं। हमारे मुल्क में हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मुकामात भी हैं। आप टिल्ला जोगियां और कटास राज को ले लीजिए। ये दोनों मकामात हिंदू पुराणों और गीता का हिस्सा हैं। हरिद्वार हिंदुओं का यरूशलेम है। ये मकाम 1947 में टिल्ला जोगियां के जोगियों ने हिंदुस्तान जाकर आबाद किया था। हम अगर वागा से कटास राज तक सियाहती कॉरिडोर बना दें और भारतीय ज़ायरीन को 2 दिन के लिए फ्री एंट्री दे दें तो हम इससे भी करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। सखर में दरिया सिंध के ऐन दरमियान 7 बेला का मंदिर है। ये मंदिर भी हिंदुओं की मुकद्दस तरीन जगह है। हम ये भी सियाहत के लिए खोल सकते हैं। आप अगर कोस्टल हाईवे पर कराची से गवादर जाएं तो रास्ते में हंगूल आता है। ये 6100 मुरब्बा किलोमीटर का नेचुरल पार्क है। इसमें हंगलाज माता का मंदिर है। ये भी हिंदुस्तान के कदीम तरीन मंदिरों में शुमार होता है। अप्रैल के महीने में यहाँ तीर्थ यात्रा होती है और इस यात्रा में 40,000 हिंदू आते हैं। हम ज़ायरीन की इस तादाद को 4-5 लाख तक बढ़ा सकते हैं। सिख मत के तमाम मुकद्दस मकामात पाकिस्तान में हैं। ननकाना साहब गुरु नानक की जन्मभूमि है। आपने करतारपुर में इंतकाल फरमाया। ये दोनों मकामात गोल्डन टेम्पल बन सकते हैं। आप ये दोनों शहर सिखों को फरोख्त कर दें या फिर जदीद सहूलतें देकर यात्रियों के लिए ओपन कर दें। 40-50 लाख सिख हर साल यहाँ आ जाएंगे। मेहरगढ़ और मोंजो दड़ो भी सोने की कानें हैं। मेहरगढ़ बलोचिस्तान में है और ये 9000 साल पुरानी तहजीब है। दुनिया में दांत का पहला ऑपरेशन और हिंदुस्तान की पहली मूर्ति मेहरगढ़ में बनाई गई थी।
जबकि मोहनजोदड़ो दुनिया में 4,500 साल पुराना वाहिद शहर है। यह शहर हिंदू मत से भी कदीम है। यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें अनाज के इज्तमाई जखीरे का बंदोबस्त किया गया और स्विमिंग पूल भी बनाया गया। इसमें 2 और 3 मंजिल के मकानात भी थे। ये थ्योरी भी मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया बलूचिस्तान का हिस्सा होता था। ये आज से हजारों लाखों साल पहले बलूचिस्तान से टूटा और समंदर पर तैरता हुआ कुतुब जनूबी के करीब पहुंच गया। हम इस थ्योरी पर भी काम करके बलूचिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के लिए खोल सकते हैं और पाकिस्तान में वारबर्टन, जैकबाबाद, लायलपुर, मिंटगुमरी, एबटाबाद और कैमलपुर जैसे गोरों के लिए बेशुमार शहर मौजूद हैं। हम इन शहरों को भी पुरानी वजह में तब्दील करके यूरोपीय सियाहों को मुतवज्जो कर सकते हैं। हम अगर सारा शहर नहीं बदल सकते तो भी हम शहरों के चंद हिस्सों को पुरानी तर्ज में तामीर करके सियाहों को जरूर बुला सकते हैं और हमें जल्द या बदेर कराची और गवादर के दरमियान नए इंटरनेशनल सियाती शहर भी आबाद करना पड़ेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। ताहम हम फौरी तौर पर मजहबी सियाहत खोल सकते हैं। हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में हम ये मौका भी खो देंगे। और आखिरी तजवीज, हम शाहराए रेशम का पाकिस्तानी हिस्सा भी खोल सकते हैं। सयाह आएं, शाहराए रेशम पर सफर करें और दूसरे मुल्कों में निकल जाएं। ये भी हमारे रेवेन्यू में इजाफा करेगा। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।